شارجہ کے میدان میں شاہینوں نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ سہ ملکی سیریز کے فیصلہ کن مارکے کے اندر پاکستان نے افغانستان کو 75 رن سے ہرا دیا ہے۔ 142 رنز کے حذف کے تعاقب میں افغان بلے باز 66 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئے۔ افغانستان کے 7 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ درویش رسولی، عظمت اللہ اور جنت کریم تو کھاتا ہی نہ کھول سکے۔ کپتان راشد خان نے 17 رنز تک ٹیم کو امید دلائی۔ محمد نواز نے کریئر کی شاندار بال گھمائی، 19 رنز دے کر ہیٹ ٹرک کے 5 وکٹوں حاصل کی۔ محمد نواز ٹی20 کرکٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے تیسرے پاکستانی بولر بن گئے ہیں۔ ویل ڈن گرین شرٹس، ویل ڈن پاکستان، ویل ڈن محمد نواز۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سہ ملکی ٹی20 سیریز جیتنے پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد۔ محمد نواز کی بولنگ نے میچ کا پانسا پلٹ دیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے کم سکور کے باوجود ٹیم ورک کا مظاہرہ کر کے فائنل میں افغانستان کو ہرایا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ قوم ٹیم سے ایسی ہی اعلیٰ کارکردگی کی امید رکھتی ہے۔ چیئرمین پی سی بی کو پاکستانی ٹیم سے ایشیا کپ میں بھی عمدہ کارکردگی کی توقع۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی سہ ملکی ٹی20 سیریز جیتنے پر پاکستانی ٹیم کو مبارکباد سامنے آئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ارسلان دورانی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارسلان، اپڈیٹ کیجیے گا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ٹیم کو سراہا ہے۔ جی، پاکستان ٹی20 میں آج بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا اور پاکستان نے ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل میں افغانستان کو 75 رنز سے شکست دی۔ اسی پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا پیغام بھی سامنے آیا اور انہوں نے پاکستان ٹیم کو مبارکباد دی ہے اور ویل ڈن گرین شرٹس، ویل ڈن محمد نواز یہ لکھا ہے۔ اور ان کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جو ہیٹ ٹرک کی اور جارحانہ بیٹنگ کی محمد نواز نے، اس کی بھی تعریف کی انہوں نے، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے کم سکور کے باوجود ٹیم ورک کا مظاہرہ کر کے فائنل میں افغانستان کو ہرایا ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن، کپتان سلمان علی آغا اور تمام کھلاڑیوں کو فائنل میں فتح پر مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی کھلاڑیوں نے افغان ٹیم کو آؤٹ کلاس کر کے جیت اپنے نام کی ہے اور کہا کہ قوم یکجا طور پر ٹیم سے ایسے ہی اعلیٰ کارکردگی کی توقع رکھتی ہے۔ آج کی جیت سے کھلاڑیوں کا مورال بلند ہوا ہے۔ امید ہے کہ پاکستان ٹیم ایشیا کپ میں بھی ایسی ہی عمدہ کارکردگی دکھائے گی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے خصوص طور پر جو فیلڈنگ بالنگ کی گئی ہے محمد نواز کی، اس کی تعریف کی اور اس طرح سے، کیونکہ آج پاکستان نے ٹرائی نیشن سیریز کے فائنل میں افغانستان کو 75 رن سے ہرایا اور خصوص طور پر محمد نواز نے بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا اور ہیٹ ٹرک سمیت 5 وکٹیں بٹوری، جو کہ بڑی کروشل وکٹس تھی، اور آتے ہی انہوں نے بھرپور بالنگ جو ہے وہ کی، جس کی وجہ سے پاکستان نے 66 رنز پر ہی افغانستان کی پوری ٹیم کو آؤٹ کیا۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کی جانب سے پاکستان ٹیم کی تعریف بھی کی گئی ہے اور مبارکباد بھی پیش کی گئی ہے۔ جی، پاکستانی ٹیم کی تعریف کی گئی ہے، مبارکباد دی گئی ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جانب سے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس حوالے سے۔ ناظرین، اب کچھ بات کریں سیلابی علاقوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی۔ آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی ٹیم سیلابی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے جھنگ پہنچوں کا دورہ، فلڈ ریلیف کیمپس میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ نائجیرین نژاد ٹیم ہیڈ محمد یحییٰ متاثرہ گھروں میں بھی گئے۔ آنے والے دنوں میں متاثرین کی بحالی بڑا چیلنج ہوگی۔ وفد کے سربراہ محمد یحییٰ نے سٹی 41 سے خصوصی گفتگو کی۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے یو این کی وفد جھنگ پہنچ گیا، جس کی قیادت یو این او ہیڈ ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر فار پاکستان محمد یحییٰ نے کی۔ یو این وفد نے بورڈ کے ذریعے سیلابی علاقوں کا دورہ کیا۔ نائجیرین نژاد یو این او ہیڈ محمد یحییٰ کا کہنا تھا کہ جھنگ کا 40% حصہ سیلابی پانی میں ڈوب گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، جس کا اثر آنے والے دنوں میں آئے گا۔ یو این او انفارمیشن سیکرٹری کیتھرین ویبل اور مسٹر کارلوس گیہا، مسٹر اولویسن، مسٹر اطہر عباس اور وقاص حلیمی نے سیلابی علاقوں کا دورہ کیا۔ یو این او ہیڈ محمد یحییٰ نے سٹی 41 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سیلاب میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے محنت کی ہے۔ جھنگ میں املاک کو بہت نقصان پہنچا، قصبوں سے رابطے ختم ہو گئے۔ سیلابی علاقوں میں پھنسے لوگوں اور ان کے لیے مویشیوں کو بچانا ایک چیلنج ہے۔ جھنگ میں زندگی کی بحالی کے لیے فلاحی اداروں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ And the challenges are actually in the next coming weeks. How do communities recover? What opportunities they have? And just to say that we at the UN and the entire humanitarian community in Pakistan is ready to support government efforts here, but also across
the country with the devastating impact of the flooding in Punjab, but also in KPK and Gilgit, where we've also seen a catastrophic impact of this monsoon season. एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इम्तियाज मोहसिन, आमिर महमूद समेत दीगर इंतजामी अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। दरियाए चिनाब के उतरते पानी ने नशीबी इलाकों का रुख कर लिया है। भौरा में मोजा सुलेमान, ठट्टा मोहम्मद शाह, मडलवाला और नलकाडा समेत दीगर आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। खुश्क राशन, सब्जियां, फल, गोश्त और दूध समेत दीगर खाने पीने का सामान खत्म हो गया। सैलाब में घिरे हुए इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। चारा न मिलने पर जानवर भी भूखे मरने लगे हैं। भवाना इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। सैलाब मुतासरीन को 2 वक्त का खाना और अद्वियात दी जाने लगी। सैलाब मुतासरीन को रहने के लिए टेंट, मवेशियों के लिए चारा और अद्वियात भी दी जा रही हैं। सैलाबी रैली की वजह से वसी पैमाने पर घर झुग्गियां तबाह हो गईं। हजारों लोग बेघर हो गए। हजारों एकड़ पर खड़ी कमान, धान, तिल, मकई और चारे की फसलें तबाह हो गईं। चारे की फसलें तबाह होने से जानवर भूखे मरने लगे। अहले इलाका का कहना है कि रस्ते मुनक़िता, खाने पीने की अशिया भी खत्म हो गईं। आटा, घी, चावल, दाल, सब्जियां, फल, गोश्त, दूध और दीगर सामान नायाब हो गया। फ्लड रिलीफ कैंप अड्डा पठानकोट और मोदा सुलेमान जैसे दूर दराज इलाकों में बनाए गए, जहां सैलाब मुतासरीन का पहुंचना मुश्किल है। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हमें शहर तक रसाई के लिए कश्ती सर्विस या ट्रैक्टर ट्राली सर्विस फराहम की जाए। इसके साथ ग़िज़ाई अशिया फराहम की जाए और सैलाब मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जाएं। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41, भवाना। नाज़रीन, खबर ये है कि सैलाबी रेलों ने पाई पाई जमा करके बनाए आशियाने मिलियामेट कर दिए हैं। अहमदपुर सियाल में 6-6 फीट पानी मकानों को नुकसान पहुंचाने लगा है। शहरी इलाका खुई आराइयां वाली में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। गरीब प्लम्बर भी अपने मकान से हाथ धो बैठा। अहमदपुर सियाल में सैलाबी पानी की तबाहकारियां, शहरी आबादी भी सैलाबी पानी की लपेट में आ गई। खुई अराइयां वाली में पाई पाई इकट्ठी करके बनाया गया गरीब प्लम्बर का आशियाना सैलाबी पानी ने उजाड़ दिया। 6-6 फीट खड़ा सैलाबी पानी दीगर मकानों को भी शदीद नुकसान पहुंचाने लगा। मजीद पानी की आमद ने मकीनों की परेशानी मजीद बढ़ा दी है। ये हमारे मजदूर भाई हैं, इनके पास कोई वसाइल नहीं है। ये बेचारा प्लम्बर का काम करता है, इसके छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक बेटा है। ये सारा मकान देख लो, इसका सारा मिसमार हो गया है। इसका कोई पुरसाने हाल कोई नहीं। बच्चे कहाँ कहाँ ठोकरें खा रहे हैं, बच्चियां खा रही हैं। ये सब लोगों का मकान अच्छे अच्छे पुख्ते पुख्ते मकान गिर गए हैं। मकान गिर गए जी। सामने देख लो जी, कोई इतने रेस्क्यू नहीं आई, कोई सियासी बंदा नहीं आया जी। ना सानू कहीं बाहर दे आके पूछे, कहीं नहीं पूछे। अपनी मदद आप ए बैक साइड तो मकान सारे फट गए ने, ढह गया मकान। ए पिछू पानी चलता पिया, सारा उत्ते पानी चलता पिया, पता नहीं लगता पिया पानी है कि मकान है इनके कोई ना। खत्म हो गई जी हर शहर। ये हमारे मकान ये 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा है जी। ये हमारे मकान भी डैमेज हो गए, अंदर से क्रैक हो गए। हम बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं जी। आगे से को पानी का इस तरह को निकासी का इंतजाम ने बजाय पानी के निकासी का इंतजाम आगे बना दिया गया जी। हम अपील करते हैं, हम गरीब आदमी किसी से अपील करें, हमारी मदद करें। मकान से हाथ धोने वाले प्लम्बर और दीगर मकीनों ने मुतालबा किया है कि हमें आफत ज़दा करार देकर नुकसान का अजाला किया जाए। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। के फैसलाबाद में बारिश ने फेस्को की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। फेस्को के मुताबिक फीडर ट्रिप्स कर गए हैं। सब डिवीजन मंसूराबाद डिवीजन अब्दुल्लापुर के मुताबिक इलाकों की बिजली 3 घंटे से बंद है। मलिकपुर, इकबाल हाउस, मदनी टाउन, सरदार कॉलोनी के इलाकों की भी बिजली बंद है। बिजली बंद होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करते चलें कि फैसलाबाद में बारिश ने फेस्को की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। फेस्को के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। अहमद साहब से तफसीलात जानते हैं। अहमद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि दिन के आगाज से ही शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहा, जिसके बाद जो है वो फैसलाबाद में बारिश के बाद फेस्को की कारकर्दगी का जो पोल है वो भी खुलकर सामने आ गया है। अगर एक जानिब अगर हम बात करें तो जहाँ पर वास्ता की नाकामी का पोल खुलकर सामने आया हमेशा की तरह, तो इससे बाहर भी जो है वो फेस्को काम की जानिब से भी जो है वो उसका पोल भी खुलकर सामने आ गया, जिसमें फेस्को के मुतअद्दिद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। अगर इनमें हम बात करें तो सब डिवीजन मंसूराबाद, उसके साथ साथ सब डिवीजन अब्दुल्लापुर के मुतअद्दिद इलाकों की बिजली जो है वो 3 घंटे से जो है वो बंद है। ना कि सिर्फ ये बल्कि मलिकपुर, इसके साथ साथ इकबाल होम्स, मदनी टाउन, सरदार कॉलोनी और सब डिवीजन नाजमाबाद
पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 की बिजली भी जो है वो दोपहर 3 बजे की बंद है, जिसके बाद जो शहरी हैं वो दोहरे हिसाब में मुब्तला हैं, क्योंकि एक जानिब अगर बादशाह की बात करें तो बादशाह की जानिब से भी जो है पानी की निकासी के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे, तो वहीं बारिश के आगाज से ही जो है वो मुख्तलिफ फीडर स्लिप हो गए हैं, जिसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश है। लेकिन बारिश अब थम भी है, थमने के बाद भी फैसलों की जानिब से बिजली की बहाली का काम नहीं किया जा सका। बिजली बहाली का काम ताहार नहीं किया जा सका। अहमद साद हमें अपडेट कर रहे थे। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, खबर यह है कि टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में भी एफपीआर का ऑनलाइन सिस्टम बेहतर ना हो सका। गलतियों और सुस्त रवि की वजह से टैक्स गुजार और कंसल्टेंट शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि फैसलाबाद टैक्स बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी इमरान मुनीर ने सिस्टम की खामियों पर तशवीश का इजहार कर दिया है। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में भी एफबीआर का ऑनलाइन सिस्टम नकारा। रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न में गलतियों को दुरुस्त न किया जा सका। दूसरी तरफ ऑनलाइन सिस्टम भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। माहिर टैक्स अमूर और साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार इमरान मुनीर का कहना था कि अगस्त के इख्तिताम तक रवा माली साल के गोशवारे में मुतअद्दिद खामियां थी। जुलाई के बजाय सितंबर में इनकम टैक्स गोशवारा जमा होना शुरू हो सका। आयरिस सिस्टम की स्पीड भी इंतहाई सुस्त है। सिस्टम की खामियों की वजह से टैक्स गुजारों और टैक्स कंसल्टेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम कोशिश करते थे कि अगस्त में कुछ रिटर्न सबमिट कर लें जो इसी। इस दफ़ा पहली रिटर्न सितंबर में आके सबमिट हुई है, तो इसका मतलब है कि इनका जो सिस्टम था वो इतना सपोर्टिव नहीं था, नहीं काम कर रहा था कि हम रिटर्न तैयार करके सबमिट कर सकें। कैलकुलेशन के एरर्स भी आ रहे थे, रेंटल इनकम वालों के प्रॉब्लम थे, सैलरी के प्रॉब्लम थे, बिजनेस के भी प्रॉब्लम थे। अभी कुछ हद तक नॉर्मल रिटर्न ठीक हुई है, लेकिन सैलरी की रिटर्न अभी भी ठीक नहीं है। टैक्स गुजारों का मुतालबा है कि एफबीआर निजाम में बेहतरी लाए ताकि शहरी आसानी के साथ अपने गोशवारे जमा करवा सके। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपये किलो पर बरकरार। बाजार में फी किलो चिकन 700 रुपये तक फरोख्त होने लगा। आलू 80 रुपये, मार्केट में 100 रुपये के किलो मिलने लगे। 70 रुपये किलो वाले प्याज बाजार में 100 रुपये किलो पे सेल होने लगा है। टमाटर की कीमत 135, बाजार में 200 रुपये किलो बिकने लगी है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ब्रायलर गोश्त 595, मार्केट में 600 रुपए फी किलो मुकर्रर। आलू कच्चा 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए मिल रहे हैं। प्याज 65 रुपए, मार्केट में 100 रुपए फरोख्त होने लगा। टमाटर 130 रुपए, मार्केट में 200 रुपए से 250। सेब गाचा 235 रुपए, मार्केट में 250 में दस्तयाब। केला 130, मार्केट में 150 से 200 रुपए दर्जन। अनार देसी 310 रुपए, मार्केट में 400। चिलियट में ब्रायलर गोश्त की कीमत 595 रुपए मुकर्रर। बाजार में फी किलो चिकन 700 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आलू 80 रुपए, मार्केट में 100 रुपए किलो मिलने लगे। 70 रुपए किलो वाले प्याज बाजार में 100 रुपए तक फरोख्त। टमाटर की कीमत 135, बाजार में 200 रुपए बिकने लगे। गिरा फरोश हर शय 10-20 रुपए महंगी बेचने लगे। शिमला मिर्च 160, करेला 120 रुपए, खीरा 95 रुपए फी किलो, आम चौसा काला 140 रुपए किलो, खजूर 450 फी किलो, मीठा दर्जन 115 रुपए, चकोतरा 115 रुपए दर्जन बिकने लगा। सुबह टैक्सिंग में चिकन, सब्जियों और फलों की कीमतों का तयन कर दिया। ब्रायलर गोश्त 593 रुपए किलो और अंडे 299 फी दर्जन। आलू 80 रुपए, मार्केट में 130 रुपए किलो मिल रहा। टमाटर 135, बाजार में 180 रुपए किलो दस्तयाब। प्याज 70 रुपए, मार्केट में 80 रुपए किलो फरोख्त। लहसुन 260, अदरक 450, बाजार में 700 रुपए किलो फी दस्तयाब। सेब 230, आड़ू 200, अमरूद 80 और गर्मा 180 रुपए में फरोख्त। केला 120 रुपए दर्जन दस्तयाब होने लगा। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम पेशरफ्त। अब तक 74,500 मुश्तरका खातों की तकसीम मुकम्मल। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुश्तरका खातों की तकसीम पर काम शुरू कर दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक खातों की तकसीम का अमल तेजी से जारी है। प्लस प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम जारी है। 31 दिसंबर तक इस पर काम जारी रहेगा। हुकूमत की जानिब से इस पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। शहरियों की जानिब से दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। और अब बात करें फैसलाबाद की सड़कों की। नाज़रीन, फैसलाबाद में सड़कों की अबतर सूरत हाल है। शहीद मिल्लत मोड़ मार्केट का रोड टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड्ढे पड़ गए, जबकि दूसरी जानिब कमा पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। इलाका मकीन पार्क आने से कतराने लगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद की शहीद मिल्लत मोड़ मार्केट का रोड टूट फूट का शिकार। रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, शहरियों की मुश्किलात बढ़ने लगी। रोड खंडर बनने के बायस दुकानदार परेशान। इलाका मकीन कहते हैं कि गुज़िश्ता कई साल से रोड पर पत्थर डालकर छोड़ दिया गया, जो तकालीफ का सबब बन रही हैं। इंतजामिया सड़क की तरफ तवज्जो दे और हालत को बेहतर करे।
फैसलाबाद में कबा पार्क इंतजाम की अदम तवज्जो का शिकार, कई फीट खास और कचरे के ढेर लग गए। इलाका मकीन पार्क आने से कतराने लगे। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता एक साल से पार्क की हालत खराब है। एक साल हुआ यहाँ पे पानी का कोई इंतजाम नहीं, ट्यूबवेल खराब तो हो चुका है, जमीन बसीदा हो गई, घास वगैरह गंदगी के ढेर, कोई आदमी इसकी परवाह नहीं करता और हम परेशान हैं। मेहरबानी करके ठीक किया जाए। फैसलाबाद में फेस्को की नाहली गोसिया चौक में ट्रांसफार्मर कई रोज से सड़क के दरमियान मौजूद। इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला, कहते हैं कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्त के बावजूद फेस्को हुकाम ने मसला हल नहीं किया। किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। नाज़रीन, टोबा टेक्सिंग में मरकजी सड़क टूट फूट का शिकार है। रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए, नोकीले पत्थर शहरियों की मुश्किलात बढ़ाने लगे हैं। अहमद नदीम की ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह की अवामी बस्ती का मरकजी रोड बरसों से खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे शहरियों की मुश्किलात के साथ हादसात का भी सबब बनने लगे। राहगीरों के लिए गुजरना मुश्किल, जबकि मोटरसाइकिल सवारों रिक्शा ड्राइवर्स के लिए सफर अजाब बन चुका है। बारिश के दिनों में सड़क पर जमा पानी सूरत हाल को मजीद खराब कर देता है। इलाका मकीनों का कहना है कि वो मुतादिद बार जिले इंतजामी और मुंतखब नुमाइंदों को शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक अमली इक़दामात नहीं किए गए। ये आपके सामने ही है कि रोड जो है यहाँ पे पानी भरा हुआ टूटा हुआ रोड है। अवामी बस्ती का एरिया है। इधर आप लतीफ़ा स्कूल से भी आगे जाएं वो सारा रोड टूटा हुआ है। मुख्तलिफ रोड जो है काफ़ी टूट फूट का शिकार हैं, जो कि मतलब काफ़ी मसाइल का बाइस बन रहे हैं। अवामी बस्ती के मकीनों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि आखिर कब तक टूटी सड़कों पर जिंदगी गुजारनी होगी। जिले इंतजामिया अहल इलाका की दाद रसी के लिए फौरी इंतजामात करे। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। और अब आपको बताएं कि अयूब रिसर्च सेंटर फैसलाबाद का फलदार दरख्तों की पैदावार में इजाफे का फैसला। आम, अमरूद, लीची, पपीता, स्ट्रॉबेरी और खजूर की काश्त बढ़ाई जाएगी। फलदार दरख्तों की पैदावार बढ़ाने के लिए अयूब रिसर्च सेंटर फंड्स और इफरादी कुव्वत बरूए कार लाएगा। फलों की बरामदात में 150 मिलियन का पोटेंशियल मौजूद है। ज़रई माहिरीन कहते हैं कि मुल्क की फूड सिक्योरिटी और खतीर ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। काश्तकारों को सर्टिफाइड पौधों की इकसाम पहुंचाने के लिए पुरज़्म है। पेट्रोलिंग पुलिस के अरसा दराज से दफातर में तैनात एहलकारों को फील्ड में तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल पंजाब ने रीजनल पेट्रोलिंग सरबराहान को मरासले जारी कर दिए हैं। मरासले में एआईजी का कहना था कि किसी भी एहलकार को 4 साल से ज़ायद अरसे तक दफातर में तैनात नहीं रखा जा सका। दफातर में तैनात एहलकारों को 9 सितंबर तक फील्ड में तैनात किया जाए। फील्ड से फ्रेश एहलकारों को दफातर में तैनात किया जाए। नाज़रीन, दूसरी जानिब थानों में रिट का दोबारा इंदराज रोकने के लिए अहम फैसला। एआईजी मॉनिटरिंग ने इंदराज मुकदमा की रेट खारिज होने पर रोजनामचा में दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। एआईजी मॉनिटरिंग ने ज़िले पुलिस सरबराहान को मरासला जारी कर दिया है। एआईजी मॉनिटरिंग के मुताबिक शहर को रेट खारिज होने पर दोबारा दायर से रोकने के लिए रपट दर्ज की जाए। एएसपी इन्वेस्टिगेशन दफ्तर को QR कोड भी साथ लगाया जाए। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में पाकिस्तान पेट्रियाटिक एसोसिएशन की जानिब से सालाना साइंसी सिंपोजियम में मुल्क भर से बच्चों के मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टर्स ने शिरकत की। फसी नकवी की रिपोर्ट देखिए। बाद में पाकिस्तान पेडियाट्रिक एसोसिएशन पंजाब की जानिब से सालाना साइंसी सिंपोजियम मुनक्किद किया गया, जिसमें मुल्क भर के मुख्तलिफ अमराज के बच्चों के डॉक्टर्स ने शिरकत की। सिंपोजियम में मुख्तलिफ अमराज की तशखीस और इलाज के हवाले से 4 मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए गए। न्यूरोलॉजी, ऑटिज्म, ADHD जैसे अमराज के हवाले से माहिरीन ने अपनी रिसर्च पेश की। प्रोफेसर डॉक्टर हुमा अरशद चीमा का कहना था कि मुल्क पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। नौजवान लड़कों और लड़कियों में बहुत से न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, फिर उन्हीं से पैदा होने वाली औलाद में वही कमी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह मुल्क में सैलाब की सूरत है तो सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स भी आज जमा किए गए। हमारी जो रिसर्च है इट शुड बी फोकस्ड अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर। हमें वेस्टर्न बेस्ड रिसर्च के बजाय अपनी रिसर्च के ऊपर बेस करके हमें अपनी प्रैक्टिसेस को उसके मुताबिक बनाना है। कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग को इनकरेज करें, कैसे हम वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ाएं, प्लस जो डिज़ास्टर इस वक्त है, फ्लड है और बच्चे और औरतें जो सफ़र कर रहे हैं और बच्चों की न्यूट्रिशन सफ़र कर रही है जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में, उसके लिए फंडिंग इकट्ठी की गई है फ्रॉम।
मुंतजिम डॉक्टर नगीना शहजादी का कहना था कि आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद बच्चों में मौजूदा बीमारियों की तशखीस और उसके इलाज को बेहतर बनाने के हवाले से माहिरीन की राय जानना है। नौमौलूद बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियों का कैसे तदारुक किया जा सकता है, हर माहिर डॉक्टर अपनी रिसर्च पेश कर रहा है। आज एक कॉन्फ्रेंस में सब अपनी इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं और इसमें बहुत से जूनियर डॉक्टर्स जो हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान इकट्ठे हुए हैं, उनको हम एजुकेट करेंगे ताकि वो अपने एरिया में अपने बच्चों का मरीजों का आसानी से इलाज कर सकें। सिंपोजियम में माहिरीन की जानिब से बच्चों में हालिया बीमारियों के बारे में बताया गया और आने वाले चैलेंजेस के बारे में भी आगाह किया गया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, दूसरी जानिब कमालिया में सियासी शख्सियत चौधरी खुशी मोहम्मद जट के डेरे पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया। बारगाह रिसालत में दरूद सलाम के नजराने पेश किए गए। अपडेट करें आपको कि महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में चौधरी कमर हुसैन जट, अब्दुल जब्बार केरेवाल एडवोकेट और वसीम अकरम चौधरी ने शिरकत की। चौधरी खालिद रहमानी, वकास आजम खान, हसन जमीर और हैदर गिरेवाल समेत दीगर भी शरीक थे। शुरका का कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका हमारे लिए मशले राह है। नाज़रीन, फैसलाबाद में जमीयत उलमाए पाकिस्तान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैली का इनेकाद। रैली की क़ियादत ज़िले जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान अलामा मंजूर साकी ने की। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैली में उलमाए कराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ज़िले जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए पाकिस्तान अलामा मंजूर साकी कहते हैं कि 7 सितंबर वो दिन है जिस दिन कादियानियों को अक़लियत करार दिया गया था। यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि किसी मर्द मुजाहिद ने असम्बली से बिल पास करवाने की इनको अक़लियत करार दिया। मजीद बोले कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिपाही आज भी ख़त्म नबूवत पर पहरा देने के लिए खड़े हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन अब्दुल रऊफ ततला के बेटे की दावत वलीमा। हनान रऊफ की दावत वलीमा में डिवीजन भर की सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग की तहसील गोजरा से ताल्लुक रखने वाले अहम समाजी व सियासी शख्सियत और किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन अब्दुल रऊफ ततला के बेटे हनान रऊफ की शादी की तकरीब सर्कल क्लब फैसलाबाद में हुई। हनान रऊफ की शादी सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले न्यूयॉर्क की बड़ी कारोबारी शख्सियत ताहिर भुट्टा की साहबजादी डॉक्टर जुनैरा से अंजाम पाई। नोबिहाता जोड़े की शादी हाल में आमद पर रिश्तेदारों की जानिब से जबरदस्त अंदाज में इस्तकबाल किया गया और गुलपाशी भी की गई। चौधरी अब्दुल रऊफ और भाई इरफान ततला ने भी मेहमानों का इस्तकबाल किया। सर्कल क्लब में होने वाली हनान रऊफ और डॉक्टर जुनैरा की शादी की तकरीब में दुल्हा दुल्हन ने केक भी काटा। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला, उनकी अहलिया और अजीजो कारब ने दुल्हा दुल्हन को तहाइफ भी दिए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी अब्दुल रऊफ ततला के साहबजादे हनान रऊफ की दावत वलीमा के मौके पर अमरीका और न्यूयॉर्क से आए मेहमान फासिल, जगी, अली शेर, यासीन, अलेक्सिस एलन, चौधरी इजाज, उसामा चौहान, सलीम आमिर भी शरीक हुए और शादी की रसूमात को एंजॉय किया। हनान रऊफ के दावत वलीमा की तकरीब में गोजरा समेत डिवीजन भर की सियासी, मजहबी शख्सियात समेत वकला और साफी बरादरी ने भी शिरकत की। तकरीब में उमर इफ्तिखार, शहबाज चीमा, अजहर गुजर, सिटी 41 के ब्यूरो चीफ मुबशर हसन नकवी, डीएसपी आसिफ अली शाह, असद जमान चीमा ने भी शिरकत की। रफीक गुजर, अख्तर विरक एडवोकेट, इजाज कोहजा एडवोकेट, शहबाज कोहजा, राशिद गिल एडवोकेट, आमिर ततला, उमर महबूब ततला, मुस्तनसर हयात ततला, आसिम ततला, एहसान ततला, सुहेब ततला, एहसानुल्लाह चीमा, वहीद चीमा और नवीद चीमा ने तकरीब में शिरकत की। शुरका ने नोबिहाता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हनान रऊफ के दावत वलीमा के मौके पर मेहमानों की रवायती और देसी खानों से तवाज़े की गई। बैरून मुमालिक से आए मेहमानों ने भी पाकिस्तानी खानों से लुत्फ उठाया। कैमरा टीम के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41।